Hello बच्चों, welcome you all at my classroom platform. This is SN Ma'am, your biology mentor, and today we are going to discuss about NSO previous year question paper. National Science Olympiad का जो पेपर SOF conduct करवाता है, here we are for you all for the open discussion on the question papers. In this sequence of the NSO regarding content, we are going to deal initially with certain question papers which were earlier held by NSO, and later on in the sequence we are going to deal with some important topics जो आपको NSO exam देने में help करने वाले हैं. So बच्चा, let's begin with the paper discussion, but prior to that, let me tell you कि कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस जो पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. जस्ट हैव अ क्विक लुक टू दैट एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर. And this question paper which we are going to solve today will be the question paper of NSO 2021-22. So, what are the basic guidelines which you need to keep in your mind? The paper will be in the objective format and you have to fill the OMR sheet corresponding to your correct answer of the question. Only one circle is to be filled there. Your question paper will be divided into 3 segments or into the 3 sections. And these 3 sections will be comprising of section 1 will be related with the logical reasoning, in which 10 questions will be there. And each question is carrying equal mark. There is no negative marking. In the section 2, it will be science section. In this section, the section 2 will be of science section. In this segment, the question will be related to biology, chemistry and physics. In the section 3, that is the achiever section, the syllabus will be same as of the section B. That means the questions related to the physics, chemistry and biology will be there. But there is difference in the marking scheme. These initial 45 questions, 10 of the logical reasoning and 35 of the science section will be comprising of 1 mark. But the question in the achiever section will be of 3 marks each. That means the 5 questions will be of 3 marks. There is no negative marking. This thing you need to keep in your mind. Now, when you will be filling your OMR sheet, you need to keep few things in mind, that you have to mention your name, name of school or the code of school, your respective class, roll number and the mobile number. Mentioning of mobile number is why necessary? Because your result is going to be reflect in the form of message in your that registered or mentioned mobile number. So be careful while filling all these information in your OMR sheet. Now, all questions are compulsory in nature and the section achiever section or the section 3 is comprised of 3 marks and rest all the 45 questions will be of 1 mark. There is no negative marking. This is very good thing here. There is no negative marking and you have to choose only one correct answer for each question. So fill your OMR sheet very carefully. Now for the filling of your OMR sheet, you need to take care that it can be filled with either with the help of HB pencil or with the help of blue or black ballpoint pen. Any kind of gel pen is not allowed there. Okay, so keep this thing also in mind. HB pencil, blue or black ballpoint pen can be used only. If you are going to solve any XYZ number of questions, at that time, the correct answer or the filling of OMR is very important, because once you darkened any circle, it will be imprinted there. So you cannot keep changing your answer. So at the time of filling OMR sheet, be very cautious, be very careful and just think about that particular question and its answer. Okay, bacha? So, now we will start the discussion of question paper of NSO, and in which I am going to take today the biology segment. And this paper was
conducted by SOF in the year 2021-22, यानी कि जस्ट प्रीवियस जो पेपर हुआ है हम उसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 10th में बायोलॉजी के सेगमेंट में सेक्शन बी जो था हमारा, उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे, फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। सी बच्चा, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नेम ऑल्सो अलोंग विद द क्वेश्चन, so that it will be clear in our mind कि किस चैप्टर को कितना ज्यादा वेटेज मिल रहा है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स कि किस चैप्टर में आपके डाउट्स ज्यादा हैं, so that we can tackle those chapters or those particular topics in the detail in your upcoming classes as well. Let's begin with the first question, that is, refer to the given flow chart. That means we have to follow this flow chart and we have to select the correct combination with respect to x and y given in the flow chart. Now let us read this flow chart. That what it is saying. In the process given here, it begins with the glucose. In the cytoplasm, glucose is being converted into pyruvic acid. That means the process of glycolysis is carrying out here. This pyruvic acid into the yeast cell is now converting into some X and energy molecule. While on the other hand, in human muscle cell, this pyruvic acid is getting converted into Y plus energy. Now we have to keep this thing in mind that this is the equation or the process of respiration which takes place in the cellular compartment for the production of energy, and that is why breakdown of glucose is taking place here. In yeast, what will happen by the breakdown of pyruvic acid? Ethanol plus CO2 plus energy molecule will be liberated. The formula of ethanol is C2H5OH, while the pyruvic acid is a 3-carbon compound. So when a 3-carbon compound is broken down, it will give us 3 carbon equivalent. 2 कार्बन इथेनॉल बनाने में यूज आ गए तो एक CO2 यहाँ पे लिबरेट हो रही है। ह्यूमन मसल सेल्स की बात करते हैं, एनएरोबिक कंडीशन जब अराइज होगी, यहाँ मेंशन्ड है एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कंडीशन कैसी है? एनएरोबिक कंडीशन है। एनएरोबिक कंडीशन में ह्यूमन मसल्स में क्या होगा? पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन CO2 वाटर और एनर्जी के अंदर कैरी आउट नहीं हो पाएगा। देन व्हाट एल्स विल टेक प्लेस? दिस पायरुविक एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। So our X will be ethanol plus CO2 and our Y will be lactic acid. Now let us see the option. X corresponds to ethanol, CO2, lactic acid, ethanol, CO2, lactic acid. Okay, here we are getting at 2 point, ethanol and CO2, जहां पे X करेक्ट है। Y हमारे हिसाब से होना चाहिए lactic acid. Let us see ये कहाँ मेंशन किया है। Only at one place lactic acid is mentioned. Ethanol, CO2 and H2O, CO2 and H2O. So the correct answer of X and Y is represented in the option number A. Here, this will take place in presence of oxygen in human cell. But the condition given in the question is anaerobic condition, and that is why the pyruvic acid in the human muscle cell will convert into lactic acid. Clear? तो X और Y का हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या जा रहा है? ईस्ट के अंदर इथेनॉल एंड CO2 और ह्यूमन मसल सेल में एनाएरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। द फंक्शन ऑफ seminal vesicle. Now what is seminal vesicle? It is a gland which is accessory gland in the male reproductive system. Seminal vesicle के functions कौन कौन से हैं? We have to find out of the given 3 statements. So let us
सी क्या कहते हैं हमारे तीनों स्टेटमेंट. Function of seminal vesicle is to secrete follicle stimulating hormone, that is FSH. FSH हार्मोन को सिक्रीट करना सेमाइनल वेसिकल का काम नहीं है. इट इज द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. So this is not the correct answer. It is secreted by pituitary gland. Next, to make the transport of sperm easier within the female reproductive tract, seminal vesicle secrete alkaline substance which is rich in nutrients, and these alkaline substance when get mixed with the sperm, they pass out the body of the male and help the sperm to swim into the female reproductive tract. So this is the correct one. Let us see what it says in the third statement. It provides energy to the sperm. Being alkaline in nature and containing different type of sugars, majorly the fructose, it helps in and providing energy to the sperm. So this is also correct. So as per the function of seminal vesicle, which is a gland in male reproductive system. And one more thing I would like to add here, seminal vesicle is present in the form of pair. There are two seminal vesicles present. So statement number 2 and statement number 3 are the correct options with regard the function of seminal vesicle, and hence our answer will go C option, that is 2 and 3 only. Next, the law of dominance given by the Mendel states that Mendel की बात हो रही है, यानी somewhere we are dealing with the heredity and the genetic portion. अब Mendel का law of dominance क्या कहता है? डोमिनेंस से ही सारी बात समझ में आ जाएगी कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होते हैं, वन विल बी डोमिनेंट विच ऑलवेज शो इट्स इफेक्ट एंड अनदर विल बी रिसेसिव. Recessive will express itself only when it is present in the homozygous condition. When both the traits are present simultaneously, one is dominant, another is recessive, then what will happen? The recessive one will be masked by the dominant one. वो छुप जाएगा, अपने expressions को show नहीं कर पाएगा. तो law of dominance क्या कहता है? Let us see our options. Out of two contrasting character, only one express itself in the F1 generation. Supposedly, we are making a cross between dominant homozygous, recessive homozygous. Then in F1 generation, we will get contrasting characters. One is dominant, another is recessive. One is responsible for tallness, another is responsible for the dwarfness. जो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, जो रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है उसे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे F1 जनरेशन में जितने प्लांट्स होंगे सारे कैसे होंगे? टॉल होंगे. रिसेसिवनेस का कैरेक्टर दैट मीन्स ड्वार्फनेस, वो क्या होगा? हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा. सो दिस इज करेक्ट, बट लेट अस सी व्हाट अदर ऑप्शंस आर सेइंग. Out of two contrasting character, one is lost and another is expressed in the F1 generation. No, the recessive one will not lost its property. It will be hidden. In F2 generation, it will be appearing in some generations or in some members. Inherited factors controlling a particular trait are dependent on each other. They will not be dependent on each other. They can segregate freely. They will express themselves freely. Both dominant and recessive phenotype traits are expressed in the F1 generation. No, in F1 generation, all plants will be as per the dominant character because they are present there as heterozygous condition. So, the correct answer as per law of dominance given by the Mendel will be A. That means, in a contrasting pair, one will express itself और जो खुद को express करेगा वो है dominant वाला, जो छुपा हुआ है वो है recessive वाला. Next question is again from heredity and evolution. Which one of the following trait studied by the Mendel is recessive? First of all, let me tell you, Mendel ने काम किया था pea plant पे.
पाइसम सेटाइवम वाज द प्लांट जिसके ऊपर मेंडल ने अपनी पूरी जेनेटिक्स की रिसर्च की थी। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए थे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एक फॉर्म डोमिनेंट होगा, एक फॉर्म रिसेसिव होगा। हमें यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा है गिवन दोस within these 4 options which is recessive. First उठाते हैं, green color of seed was dominant or recessive. तो हमारा आंसर क्या चाहेगा कि रिसेसिव कैरेक्टर को चूज करना है। अगर हम बात करते हैं सीड कलर को लेकर, तो सीड कलर येलो इज डोमिनेंट while the green color of seed is recessive. Although question का आंसर आ गया, but we need to see other options as well. Tall plant size, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉलनेस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, तो रिसेसिव क्या होगा? ड्वार्फनेस। वायलेट फ्लावर कलर, दिस इज ऑल्सो डोमिनेंट, देन व्हाट इज द रिसेसिवनेस? व्हाइट फ्लावर कलर। इन्फ्लेटेड पोर्ट शेप मीन्स पूरी तरह से फूली हुई पोर्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज ऑल्सो डोमिनेंट कैरेक्टर। देन व्हाट इज इट्स रिसेसिव वर्जन? कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्ट इज द रिसेसिव कैरेक्टर। क्वेश्चन में पूछा है रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है? 3 डोमिनेंट वाले हैं, सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव कैरेक्टर्स को। पी प्लांट वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, और कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे मेंडल ने? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आर एनवायरमेंट और इट्स मैनेजमेंट से है। क्या कहता है? कुछ फूड चेन बनाकर दे रखी है, देयर आर 5 फूड चेन्स। नाउ वी हैव टू स्टडी दीज फूड चेन। करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? वी हैव टू फाइंड आउट within those given food chain how many primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers are present there. Primary consumer is represented by P, secondary by Q and tertiary by R. We have to just tell their number. Now, who is primary consumer? फूड प्रोड्यूस करने के बाद जो सबसे पहली बार उन्हें खाने का काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। तो अगर हम सबसे बॉटम लाइन को देखें जो खाना बनाने का काम कर रहे हैं, दिस बॉटम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोड्यूसर्स। ये फूड को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। अब प्रोड्यूसर को जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा होगा, दे विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। हमें नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो लेट अस सी। प्लांट को खा रहा है एलिफेंट, डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है, तो दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास को कंज्यूम कर रहा है डियर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास इज कंज्यूम्ड बाय ग्रास हॉपर, ग्रास इज कंज्यूम्ड बाय रैबिट। एक्वेटिक प्लांट्स आर बीन ईटन बाय एक्वेटिक इंसेक्ट। सो 1, 2, 3, 4 and 5, टोटल कितने प्राइमरी कंज्यूमर आए हमारे पास? दे आर 5 इन नंबर। फिर बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे दे विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ढूंढते हैं इन्हें। फूड चेन ए की अगर मैं बात करूं तो प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर इतने पे खत्म हो गई, तो यहां कोई भी सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है। स्विचिंग टू द फूड चेन बी, ग्रास वाज बीइंग कंज्यूम बाय डियर, और डियर को खा लिया टाइगर ने। प्राइमरी कंज्यूमर को टाइगर ने खा लिया, तो टाइगर इज सेकेंडरी कंज्यूमर 1। ग्रास हॉपर इज बीन ईटन बाय फ्रॉग, तो फ्रॉग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर 2। हम काउंटिंग भी साथ साथ लेते चल रहे हैं। रैबिट को खा लिया वाइल्ड कैट ने, तो इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर 3। एक्वेटिक इंसेक्ट्स को खाया स्मॉल फिशेस ने, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर 4 को।
और ज्यादा चेन भी नहीं है हमारे पास, तो सेकेंडरी कंज्यूमर टोटल कितने आए, 1 2 3 एंड 4। देन हमें चूज करने हैं नंबर ऑफ टर्शरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम करेंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर, फर्स्ट चेन खत्म हो चुकी है 2 पे, थर्ड खत्म हो चुकी है, सेकेंड खत्म हो चुकी है, थर्ड की अगर बात करें, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। स्नेक को किसने खाया, ईगल ने, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टर्शरी कंज्यूमर फर्स्ट को। इन दोनों के अंदर कोई टर्शरी कंज्यूमर नहीं था। वाइल्ड कैट को खाया लॉयन ने, इट इज टर्शरी कंज्यूमर 2। स्मॉल फिशेस वर बीन ईटन बाय फिश ईटिंग बर्ड्स विच इज रिप्रेजेंटिंग टर्शरी कंज्यूमर 3। तो ओवरऑल जो हमें 5 फूड चेन्स दी गई हैं, इनमें टर्शरी कंज्यूमर कितने हैं, 3। सो द करेक्ट आंसर जो होगा हमारा PQR का रिप्रेजेंटेशन किसे दे रहा होगा, 5, 4 and 3 respectively. Let us see the option. PQR 5, 4 and 3 are present in option number C. तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा C. नेक्स्ट, our environment and its management का ही क्वेश्चन है. Given below is a list of few harmful effects on human beings. किसके हार्मफुल इफेक्ट्स दे रहा है, उसको नीचे मेंशन कर रखा है कि ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. Which of these are caused due to the ozone depletion? ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो रही है तो सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन अर्थ पे ज्यादा आ रही है. इसका कंसेक्यूटिव इफेक्ट क्या है, यूवी रेडिएशंस are entering more into Earth's atmosphere. और ये जो यूवी रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज्यादा आ रही है, ये कैसी वाली है, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करने वाली है. बट क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेंगी, दीज यूवी रेडिएशंस कैन लीड टू द कैंसर. यस, सेल डिवीजन को एबनॉर्मली इंक्रीज करने का काम करती है. इन यूवी के ज्यादा कांटेक्ट में आने पे कैटरेक्ट ऑफ आईज कैरी आउट हो सकता है. लेंस के अंदर ओपेकनेस इंक्रीज हो सकती है. देन लोवरिंग ऑफ बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिजीज, यानी कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसकी वर्किंग डिक्रीज होने लगती है. तो दिस इज ऑल्सो एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू coming in contact with the UV radiation. It increases mortality of developing embryo. UV रेज बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जो डेवलपमेंट का फेज चल रहा होता है, जहां पे बहुत सारे रैपिड डिविजन्स कैरी आउट हो रहे होते हैं, उन प्रोसेसेस को भी वो हॉल्ट करने का काम करता है. तो एम्ब्रियो की टाइम से पहले डेथ को इंड्यूस कर सकते हैं अगर यूवी के कांटेक्ट में आते हैं. तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं वो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कंसीक्वेंस की फॉर्म में हमें फेस करने पड़ सकते हैं. सो ऑल दीज फोर्स आर द करेक्ट आंसर कि ये सारी की सारी हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज ओजोन डिप्लीशन के रिजल्ट की फॉर्म में ऑब्जर्व हो सकती हैं. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट. यहां पे हमें करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है, बट दे क्या रखा है, ऑन वन साइड दे आर डिफरेंट डैम्स, और ये डैम्स किन रिवर पे बने हैं वो मेंशन कर रखा है. करेक्टली किसे मैच किया गया है वो ढूंढना है, और इनकरेक्ट वाले जो हैं उनमें क्या गड़बड़ी है ये भी हम साथ में देखेंगे. तो नंबर 1 इज भाखड़ा डैम. दिस इज ऑल्सो नोन एज भाखड़ा नागल डैम विच इज लोकेटेड ऑन द सतलज रिवर. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज टेहरी डैम. Tehri Dam is present on which river? Just try to recall it. Then Sardar Sarovar Dam and Mathur Dam. कौन सा वाला डैम किस रिवर पे लोकेटेड है? Just find it out. So, next question. It is also from our environment and its management. So, this is the consecutive third question which is from the our environment and its management. करना क्या बचा हमें इस क्वेश्चन के अंदर, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट मैच. बट करेक्ट मैच बिटवीन व्हाट? द करेक्ट मैच बिटवीन द डैम
and on the river where this dam is constructed. So the first option is Bhakra Dam. This is also known as Bhakra Nagal Dam, which is located on the Satluj River. So this is correct. Although we have got our answer, but we have to analyze remaining options as well. Second one is Tehri Dam, which is located on not the Tawa River. It is located on Bhagirathi River. Next one is Sardar Sarovar Dam, which is located on Narmada River. And the last one is Metter Dam, which is located on Kaveri River. तो यहाँ से एक और चीज दिमाग में आ सकती है बच्चा कि हमें मैचअप्स की फॉर्म में दे दिए जाएं. At one side name of dams and in the another column the names of river, and we have to just cross match to find out our correct answer. So Metter Dam is on Kaveri, Sardar Sarovar Dam is on Narmada. तो ये तो यहाँ से ही क्रॉस हो सकते हैं हम हमारे ABCD के अकॉर्डिंग जो जंबल करके हमें ऑप्शंस दें. Accordingly, we have to choose. अब इस क्वेश्चन में पूछा है which is the correct match. So there is only one correct match, that is in option number A. Switching to the next question. Here we are given the two diagrams named P and Q, and two different type of tissues are there. The question is, shown below are diagrammatic representation of two different type of tissues, that is P and Q. We can see it. The tissue P is columnar ciliated epithelium tissue, while the Q is showing deposition on the corners. So this is which type of plant tissue? Here the cell wall is present, so it is a plant tissue. But which type of plant tissue? This is parenchymatous plant tissue, which is a type of simple permanent plant tissue. They do not have the power to divide. Okay. Now let us see the question. Which of the following holds true regarding the tissue P and Q? Here we have given certain statement. P और Q को match करता हुआ सही statement क्या है? That we have to find out. The tissue P provide protection against entry of germs. Tissue Q provide flexibility to the soft aerial part of the plant so that they can bend without breaking. Tissue P is the most widely distributed connective tissue in the animal body. No. It is not a connective tissue. It is a kind of epithelial tissue. So this is absolutely false. The cell of Q have extremely thick walls which possesses thickening of pectin and lignin at corners, and there are no intercellular space. This is absolutely false because there is thickening on the corner. It gives flexibility. And with regard to these two type of tissue, the correct option is option number B. Why we are going with this? Why we are going with this, bacha? Because with regard tissue P, there is no correct statement is given. Tissue P provide protection against entry of germ. This is the activity of simple squamous epithelial or stratified squamous epithelial tissue, which is present in the form of our skin layer, जो direct germs की entry को रोकता है. Now, what is the role of this columnar ciliated epithelial tissue? This is present in our respiratory tract, and in case of female, it is present in the fallopian tube. What is the role of ciliated columnar epithelium? Cilia propels the things in one direction. So in our respiratory tract, it propels the mucus, but in the fallopian tube, it helps in propelling a movement of ovum into the fallopian tube. So accordingly, there is no certain statements given in the question. So we can't choose any true statement regarding the P. But regarding the option Q, we have here the option number B.
the tissue P provide flexibility, and flexibility is provided by the colon-chymatous tissue. It is present in the stalk of leaves. It is present in branches so that they can withstand the pressure of air. Many a times we see कि बहुत तेज हवा चलने की वजह से लीव्स के अंदर बहुत बेंडिंग एंड मूवमेंट हो रहा है, ब्रांचेस बेंड हो रही हैं, वापस से इरेक्ट हो रही हैं, बट दे आर नॉट ब्रेकिंग अपार्ट. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कौन करता है? दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ colon-chymatous टिश्यू. नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाई डू वी फॉल इल. डिजीजेस से रिलेटेड हमारा एक चैप्टर है, बट this chapter is not in class 10th. Then why this question is present here? So बच्चा, let me clear one thing to you. Class 10th का जो NSO का पेपर है उसमें कुछ questions class 9th के just previous class के भी कुछ questions आ सकते हैं. तो in the course you have to just revise one previous class also before attempting or before going to give the examination of NSO. तो यहाँ हमारे पास 10th के साथ कुछ questions 9th के भी होंगे. We are going to deal here with those questions as well for you all. Okay? एक साल पहले पढ़ा है, थोड़ी चीजें भूल गए हैं, तो we will brush it up, we will revise it again. Now, coming to the question, refer to the given flow chart and select the correct statement regarding certain notation W, X, Y and Z. इनका क्या मतलब है? इन तक पहुंचने से पहले हमें इस फ्लो चार्ट के थ्रू जाना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. It is a communicable disease. If it's a communicable disease, then we have to move down. But if it's not a communicable disease, we can directly go to the Z. Non-communicable diseases are those diseases which remains restricted to that particular infected person, जो दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकती है. Just like joint pain kind of thing. जिस इंसान को joint pain है उसी तक लिमिटेड रहेगा. टच करने से, पास जाने से, साथ बैठने से कोई इन्फेक्शन ऐसा है ही नहीं जो स्प्रेड हो सकता हो. फाइन. दूसरी तरफ अगर डिजीज कम्युनिकेबल है तो वी हैव टू मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट शोज डायरेक्ट ट्रांसमिशन. कम्युनिकेबल है मीन स्प्रेड होगी, डायरेक्टली स्प्रेड हो रही है तो हमें जाना है इस तरफ. फिर एक क्वेश्चन है, क्या कहता है? इट शोज ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिनेशन मींस प्लेसेंटा के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है बट जाएगा डायरेक्ट. जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डायरेक्ट किसी हेल्दी पर्सन को जा रहा है विदाउट एनी मीडियोकर, विदाउट एनी वेक्टर. अगर ऐसा हो रहा है तो डिजीज है W, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन द डिजीज इज X. कमिंग बैक हियर, अगर डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं शो हो रहा है तो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है. कम्युनिकेबल है यानी स्प्रेड हो रहा है बट डायरेक्टली नहीं हो रहा है, यानी कोई मीडिएटर है. वो मीडिएटर कौन है? मीडिएटर है यहाँ पे कोई ना कोई वेक्टर जिसके थ्रू ये डिजीज स्प्रेड होगी. देन द आंसर इज Y. अब देखते हैं X, Y, Z और W क्या क्या कहते हैं. फर्स्ट, W could be syphilis. W could be syphilis यानी कि transplacental transmission. Whereas Z could be the chicken pox. चिकन पॉक्स को ये कह रहा है कि कम्युनिकेबल नहीं है, ये नहीं हो सकता. चिकन पॉक्स कम्युनिकेबल है एंड सिफिलिस ट्रांसप्लेसेंटली ट्रांसफर नहीं होता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज not fit as per our this flow chart. Coming to the next, W could be AIDS, whereas Y could be dengue. Let us see. AIDS spread किसकी वजह से हो रहा है? What is the causative agent? It is HIV, Human Immunodeficiency Virus. And the full form of AIDS is Acquired Immunodeficiency Syndrome. तो AIDS का जो इन्फेक्शन है ये कम्युनिकेबल है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होता है, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी कॉज कर सकता है. इफ अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट इज HIV पॉजिटिव तो ये इन्फेक्शन उसके फीटस को, जो यंग वन ग्रो कर रहा है उसके वोम में, ट्रांसफर हो सकता है ये HIV का इन्फेक्शन. तो यस, W का आंसर एड्स का इन्फेक्शन या HIV का इन्फेक्शन जिसकी वजह से एड्स डिजीज होगी हो सकता है. लेट अस सी
वाई के बारे में क्या कह रहा है? वाई इज प्रेजेंट हियर, कम्युनिकेबल है यानी स्प्रेड होगी, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा और वेक्टर बॉर्न होगा। डेंगू वायरस जो है उसका स्प्रेड मॉस्किटोज के थ्रू स्प्रेड होता है, तो इट इज वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो यस, वाई कुड बी द डेंगू, इट कैन बी डेंगू। और देख लेते हैं, Y could be kala azar, whereas Z could be sleeping sickness. Communicable and direct transmission, vector borne, and then यहाँ पहुंच रहे हैं हम काला आजार के केस में। तो काला आजार एंड स्लीपिंग सिकनेस दोनों ही प्रोटोजोन कॉज डिजीजेस हैं, डायरेक्टली कैरी आउट हो रही हैं। यहाँ पे वेक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट हम इसको नॉन कम्युनिकेबल के अंदर नहीं डाल सकते हैं। तो Y का जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसके लिए ये काला आजार चूज कर रहा है, बट Z के लिए ये कह रहा है दैट इट इज नॉन कम्युनिकेबल और इट कैन नॉट बी कम्युनिकेट। नो के बाद Z का ऑप्शन दे रहा है, तो नो, दिस इज नॉट फिट फॉर द करेक्ट ऑप्शन। X कुड बी द गोनोरिया, ट्रांसपेसेंटल ट्रांसमिशन शो नहीं करता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। Y कुड बी डायबिटीज, Y could be diabetes. Diabetes is not any vector borne disease. ये हमारे बॉडी के सिस्टम की माल फंक्शनिंग की वजह से कैरी आउट हो रहा है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, प्लस इट इज नॉट एट ऑल कम्युनिकेबल डिजीज। ये पूरा प्रोसेस कम्युनिकेबल के हिसाब से आया। अगर Z की तरफ कहता कि इट इज नॉन कम्युनिकेबल तो बात सही होती। डायबिटीज एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं हो रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट W could be AIDS and Y could be the dengue. Next question, here we are with a tabular question. क्या कहता है क्वेश्चन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में डिफरेंसेस दे रखे हैं। वी हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ options. Here we have to select incorrect pair of differences. Let us see with the first option. Rough endoplasmic reticulum is consist of mainly tubules and vesicles. RER is majorly present in the form of flattened cisternes, while in the SER more tubules and vesicles are found. So these should be interchanged. Next, it has ribosomes attached on its cytoplasmic surface. This is absolutely correct. But the smooth endoplasmic reticulum is devoid of ribosome. So it's saying it do not be a ribosome. This is also correct. Switching to next. It is a well developed in cells specialized to synthesize protein. Rough endoplasmic reticulum contains ribosome on its surface and ribosomes are the protein factory of the cell. तो हाँ, RER का काम प्रोटीन बनाना है। ऑन द सेम फेज SER का फंक्शन क्या है? Being smooth in nature, it is responsible for the production and synthesis of lipids and lipid derivatives की फॉर्म में स्टेरॉइड्स। तो that is also correct, functions को define कर रहा है। Next, the product do not pass into the lumen of endoplasmic reticulum. जैसे जैसे RER पे प्रोटीन बनते जाते हैं ये साइटोप्लाज्मिक फेज से RER के अंदर की तरफ, यानी यहाँ पे राइबोसोम जुड़े हुए हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन पार्टिकल इट विल एंटर इनटू द ल्यूमेन, तो एंटर करता है, जबकि हमें यहाँ क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट डू नॉट पास इनटू द ल्यूमेन, तो ये चीज तो गलत है। द प्रोडक्ट पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू ट्रांसपोर्ट टू द अदर प्लेसेस। ये डायरेक्टली ल्यूमेन से ट्रांसफर नहीं होगा, इंस्टेड वेसिकल्स की फॉर्म में पैक होगा एंड देन उसका ट्रांसपोर्टेशन गोल्जी बॉडी डिसाइड कर रहा होगा। तो फंक्शन कुछ गड़बड़ दे रखे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर को ढूंढना है। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 4 आर इनकरेक्ट एंड 1 और 4 का जो करेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी। So, bacha, we need to keep one thing very clear in our brain or in our head while attempting the question, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें वैसे ही पढ़ना है जैसे वो दी हुई है। अपना ज्यादा वाला दिमाग या अपनी ज्यादा वाला फीलिंग्स वहां पे हमें इनकॉर्पोरेट नहीं करनी है।
हमें अगर क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट दे रखा है, करेक्ट दे रखा है, ट्रू मेंशन किया हुआ है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रखा है, तो इन सारी चीजों को इनसर्कल कर लेना है ताकि हम भावनाओं में बहते हुए कोई गलत ऑप्शन ना चूज कर लें। अगर यहाँ पे इनकरेक्ट पे अटेंशन ना जाए, हम करेक्ट के हिसाब से ऑप्शंस चूज कर लेते हैं, 2 और 3 वाला कोई कॉम्बिनेशन में, 2 और 3 वाला डी ऑप्शन कॉम्बिनेशन में दे रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करेक्ट एंड इनकरेक्ट की मिस रीडिंग की हमने, उसकी वजह से हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑल्दो नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर, बट पॉजिटिव मार्क्स स्कोर करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। So this question was also from the class 9th. Coming to the next, the question is from natural resources. Non-point source of water pollution is. What is non-point source? Direct जहां से contamination आता है, that is called as point sources of water pollution. Indirectly अगर कहीं से आ रहा है, water body के अंदर pollutants mix हो रहे हैं, तो that will be called as non-point source of water pollution. Factories directly pour कर रही हैं, ऑयल वेल से डायरेक्टली, पावर प्लांट से डायरेक्टली गंदा पानी जो है वो रिलीज किया जाता है मेन वाटर बॉडी के अंदर, जो वाटर को पोल्यूट कर रहा है। इस वाटर के अंदर हैवी केमिकल्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, वाटर का हाई टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है वाटर बॉडी को पोल्यूट करने के लिए। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स में डाइज हो सकती हैं, डिटर्जेंट्स हो सकते हैं जो वाटर बॉडी को पोल्यूट करने का काम करते हैं। बट The runoff water from fields and roads, naturally जो बारिश का पानी गिरा, बहता हुआ वाटर बॉडी में मिक्स हो गया, it is not the source which is creating water pollution. So the correct answer will be option number B. अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की, यानी कि साइंस के पोर्शन को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। One is the section second and another is the achievers section, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे बच्चा, हमने इनिशियली बात की थी, एंड ईच क्वेश्चन विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 3 मार्क्स। अब ये 5 क्वेश्चंस बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी भी मैनर में हो सकते हैं, किसी के 2, किसी का 1, देयर इज नो फिक्स डिवाइडेशन। तो हमें अब बायोलॉजी से रिलेटेड अचीवर सेक्शन में जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें डिस्कस करना है। लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चन लेंथी है, बट घबराने की जरूरत नहीं है लेंथ को देखते हुए। जस्ट स्टे काम, आराम आराम से क्वेश्चंस को रीड करना है। सारी थियरी देके हमें सारी बातें समझा रखी होती हैं एंड देन छोटी सी बात पूछ रहे होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू वेल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रीड द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स आर मेंशन्ड इन इटैलिक्स। वी हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। क्या सेलेक्ट करना है? जो सेलेक्ट करना है उसे पहले इनसर्कल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में हमारे दिमाग से ध्यान नहीं हटना चाहिए। अब पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ क्या दे रखा है। द मोस्ट वाइटल फंक्शन ऑफ हार्ट इज हार्ट बीट। ऑफ कोर्स हार्ट अगर बीट कर रहा है तो सब कुछ खैरियत है। हाँ जी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच टेक्स पार्ट during the completion of one heartbeat is called as cardiac output. Is it called cardiac output? And one heartbeat is called as cardiac cycle. It is called as cardiac cycle. और एक cardiac cycle कितना टाइम लेती है? It takes 0.8 second of time. ठीक है, 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, तो पर साइकिल का जो ड्यूरेशन है दैट इज 0.8 सेकेंड. इट इन्वॉल्व्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्ट जब करता है तो हम उसे कहते हैं सिस्टोल, और जब वो रिलैक्स करता है तो उसे हम कहते हैं डायस्टोल. देखते हैं क्या लिखा है. द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज डायस्टोल. ओ इट्स राइटिंग ऑपोजिट. The contraction is called as systole and the relaxation is called as diastole. Atrial contraction forces, pumping of oxygenated blood from the right atrium to the right ventricle. Atrias are the upper chamber of hearts, जिनको हम ऑरिकल्स भी बोलते हैं. तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा. ऑरिकल में ब्लड कहां से आया? तो पूरी बॉडी से कलेक्ट हुआ राइट ऑरिकल के अंदर, और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आया हार्ट के. लेफ्ट ऑरिकल के पास ब्लड आया फ्रॉम द लंग्स. ऑक्सीजनेटेड आएगा, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड आएगा. तो इस रास्ते की बात कर रहा है
राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एंटर कर रहा है, ब्लड कैसा वाला होगा, बॉडी से कलेक्ट होकर आया है, तो इट विल बी डीऑक्सीजनेटेड। एंड डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन का लेवल कम है, CO2 का लेवल ज्यादा है। ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट देयर, CO2 का लेवल ज्यादा है। Blood from right ventricle to this. During contraction of ventricle, blood from right ventricle flows to the lungs through the aorta, and blood from left ventricle is distributed to all part of the body through pulmonary artery. These should be interchanged because left ventricle से blood जाएगा pulmonary आर्टरी से लंग्स के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा के थ्रू होता हुआ पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां से हमने क्या क्रक्स निकाला, करेक्शंस तो बहुत सारे हैं। अब हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट चीज ढूंढनी है। जहां जहां गलतियां थी हमने उन सबको रेक्टिफाई कर दिया, हमें सही वर्जन पता है। अब ऑप्शंस में क्या गलत दे रखा होगा हमें तुरंत से पता चल जाएगा। देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन, कार्डियक आउटपुट मस्ट बी चेंज्ड विद कार्डियक साइकिल। हमने कार्डियक आउटपुट को कार्डियक साइकिल से रिप्लेस ऑलरेडी कर दिया है, तो दिस इज करेक्ट। ये कह रहा है ये करेक्शन कर दो, सही है। नेक्स्ट, डायस्टोल एंड सिस्टोल मस्ट बी इंटरचेंज्ड। डायस्टोल को हमने सिस्टोल से और यहां पे सिस्टोल को डायस्टोल से हम ऑलरेडी ये भी इंटरचेंज कर चुके हैं, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा, ऑक्सीजनेटेड मस्ट बी चेंज टू डीऑक्सीजनेटेड। तो यहां पे ये जो चेंज कह रहा है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से रिप्लेस करना है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी मस्ट नॉट बी चेंज्ड एज दे आर करेक्टली मेंशन्ड। ये कैसी बात कह रहा है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा लेकर जाती है। इस बात को यहाँ पे ऑपोजिट दे रखा है और ये कह रहा है इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सही है। नो 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 नो, वी डू नॉट अग्री टू दिस। तो ये बात सही नहीं है। और क्वेश्चन ने क्या ढूंढने को बोला है, व्हाट इज इनकरेक्ट दैट वी हैव टू फाइंड। तो बस मिल गया हमें हमारा आंसर। क्या है इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी जो है ये है इनकरेक्ट। तो अचीवर सेक्शन का पहला क्वेश्चन, लाइफ प्रोसेस से सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का मेजर काम कर रहा है उसकी एक्टिविटी का एक कंप्लीट पैराग्राफ दे दिया। जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स करके मेंशन किया, क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अगर एक भी जगह हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से भी ऊपर नीचे होंगे तो हम इससे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट। हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है, हमारी थियोरी जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने जरूरी है, तभी हम अचीवर सेक्शंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एंड ईच क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन इज गिविंग अस 3 मार्क्स, सो डोंट फॉरगेट दैट। हम इन क्वेश्चंस को लाइटली नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द अचीवर सेक्शन इज, रिफर टू द ग्राफ गिवन बिलो, जहां पे डिफरेंट हॉर्मोन्स मेंशन कर रखे हैं फ्रॉम P to S ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ नॉर्मल वुमेन। नाउ व्हाट PQRS इज मीनिंग और इनके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। पहले हम निकाल लेते हैं कि कौन सा वाला लेटर किस हार्मोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे ज्यादा पीक जो मिल रही है दैट इज R, ये रिप्रेजेंट कर रहा है LH को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से जिसके पीक को ऑब्टेन होने को हम बोलते हैं LH सर्ज, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ ओव्यूलेशन जो ऑलमोस्ट मिड ऑफ साइकिल के अंदर कैरी आउट हो रही है। देन इफ वी लुक टू द P, ये उस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होता है। इनिशियली द लेवल इज लो, LH सर्ज इंड्यूस होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन इंक्रीज होगा। क्यों होगा, बिकॉज LH कॉर्पस ल्यूटियम को पूरी तरह से डेवलप होने और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने को फेवर करती है। तो P इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। देन Q is showing another peak
along with the this is the peak represented by the Q hormone, and this peak represents FSH, that is follicle stimulating hormone. Its level is initially high, which is favoring development of follicles internally within the ovary. Follicle का stimulation carry out हो रहा है, development, secondary, tertiary and then Graafian follicle के formation तक का process चलेगा. लास्ट बचता है हमारा एस वाला ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट्रोजन के लेवल को. एस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन. तो हमने यहाँ पे चारों हार्मोन्स की आइडेंटिफिकेशन कर ली ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन ग्राफ. नाउ अब इस ग्राफ पे बेस्ड हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं P2S. हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन we have to find out the incorrect statement regarding them. R stimulates the ovarian follicle to produce estrogen during proliferative phase, while the Q stimulates the corpus luteum of the ovary to secrete the progesterone. Now, the R is LH and Q is FSH. R कह रहा है follicles को produce करने के लिए stimulate करेगा. LH ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, ना कि फॉलिकल की स्टिमुलेशन को फेवर करता है. तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. मेंस्ट्रुअल फेज इज कॉज्ड बाय द रिडक्शन ऑफ P एंड S. P और S के रिडक्शन की वजह से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है. दिस इज करेक्ट. तो ये बात सही है. दिस इज नॉट करेक्ट. प्रोलिफरेटिव फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ S, while the secretory phase is characterized by increased production of P. S and P के रोल को दे रहा है S और P, proliferative and secretory phase. इनिशियली इनके लेवल लो है, जबकि ये कह रहा है कि इस फेज के अंदर उनके लेवल हाई होंगे. In males, Q causes spermatogenesis, whereas R stimulates the leading cells to secrete the testosterone hormone. Here Q is FSH and the R is LH. The role of these two hormones are mentioned absolutely correctly here. Correct answer हमारा क्या जाएगा, जो हमने initially conclude कर लिया. Incorrect statement है कि ये जो respective hormones हैं proliferative phase और secretory phase की activity को introduce करवाने के लिए, प्रोजेस्ट्रॉन के सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज पर्टिकुलर एक्टिविटीज. सो द क्वेश्चन सेकेंड इन द अचीवर सेक्शन वाज रिलेटेड विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर चारों हार्मोन्स का रोल अच्छे से पता है, यू विल बी गेटिंग कंप्लीट क्वेश्चन ऑन वन पेज. सो यू हैव टू एनालाइज द ग्राफ गिवन हियर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोनल एक्टिविटी. कौन सा हार्मोन किस फेज के अंदर एक्टिव होता है, कौन सा हार्मोन क्या एक्टिविटी कैरी आउट करवाता है, द पर्टिकुलर रोल एंड द फेज जहां पे वो डोमिनेंटली काम कर रहा है. अगर इतना हमें दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं. हमने ये पढ़ते ही हमारा आंसर क्लिक हो गया था कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग मेंशन कर रहा है, रेस्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. सो दिस वाज आवर कंप्लीट पेपर डिस्कशन ऑफ 2021-22 जो क्लास 10th में बायोलॉजी का सेक्शन था, that we have discussed. Along with this, in the description box, you will be getting the solution of chemistry, physics and LR section as well. So kindly go through those links also to know about the complete analysis of the paper. Subscribe our channel, like it and share it as much as you can with your friends so that it will help in their preparations as well.